कसूर में मोहल्लेदारों की निशानदही पर एक मकान से मिलने वाली गली सड़ी लाश की तफ्तीश से हुए चौंका देने वाले इंकशाफात। मकतूल रशीद को एक खातून से नाजायज ताल्लुकात और बाद अज़ां इससे शादी की ख्वाहिश पर इस खातून के शौहर ने नाजुक अज़ा काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसने मुझे कहा था कि बेगम के पैसे ले लो और इसे डिवोर्स दे के चले जाओ। बस यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, छुरी के साथ उसका कलम किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, कसूर में एक गांव से मोहल्लेदार ये एतराज़ करते हैं, ये कंप्लेन करते हैं कि इस घर से स्मेल आ रही है। पुलिस जाके जब उस घर को चेक करती है तो वहाँ पर पाई जाती है एक डेड बॉडी जो कि 2 दिन पुरानी होती है और बहुत ही अजीब हालत में मौजूद होती है। इस चीज़ की FIR दर्ज की जाती है, 276/22 ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। आगे इंटेरोगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत से हकायक सामने आते हैं कि कातिल के किससे ताल्लुकात थे और किसने इसको किस अंदाज में किस तरह से कत्ल किया। ये अनहोनी कहानी सारी आपको दिखाते हैं। पूरा नाम क्या है? हिफ्ज़ा मुस्तकीम। उम्र कितनी है? 19 साल। शादी को कितना अरसा हुआ है? 2 साल। 2 साल। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज है। क्या हुआ है? ये थाने तक के मामला, कत्ल, शौहर से नाराज़गी, क्या हुआ? मामला क्या हुआ है? मैम साड़ी मियां बीवी ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਿਫ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਛੁਰੀਆਂ ਚਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। कौन? रशीद। क्या कर रहा था वहाँ पे? ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। मैं शौहर कहाँ था उस टाइम? नहीं वो है नहीं सी वो घर ਸੀ। आप अकेली गई थी? ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर? ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। रशीद कवारा था, शादीशुदा? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बच्चे भी थे? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा। फिर गपशप शुरू हो गई। कितना अरसा रही? 20-25 ਦਿਨ। मुलाकात कहाँ होती थी? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ किसने? रशीद ने। उसके घर? जी। फिर? ਫਿਰ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਈਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1-2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਸਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ, ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਵਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ कैसे कत्ल किया है? रशीद का कत्ल कैसे हुआ है?
ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इसके अलावा और कितने लोगों से ताल्लुकात हैं? ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾजिद ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। माजिद ने? माजिद था बाबा सा? जी, नाम भी नहीं पता। बादशाह नाम ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ। इसके अलावा और कोई नहीं है। और सब तो पहले इशफाक ਸੀਗਾ, और ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। क्या नाम है पूरा? आसिफ अली। आसिफ अली। आसिफ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल उम्र है। 24 साल उम्र है। शादी को कितना अरसा हुआ? शादी को 2.5 साल हो गए हैं। आसिफ, क्या हुआ, यहाँ कैसे आए हो? यहाँ मैडम मैंने मर्डर किया है, इसलिए आया हूँ। किसको मर्डर किया है? रशीद नामी शख्स को। वो मेरे घरेलू मामलात ख़राब कर रहा था। मना किया था? मना किया था, बेगम को भी किया था, उसको भी किया था। फिर क्या उसने आगे से बात ही मुझे वैसी की जैसे कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। और क्या कहा था? उसने मुझे कहा था कि बेगम के पैसे ले लो और इसे डिवोर्स दे के चले जाओ। बस यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसको कत्ल किया और घर चला गया हूँ। मेरी आप दोनों मिल के बैठ के नशा भी तो करते थे ना, रशीद और आप? नहीं मैडम, मैं नहीं करता था, मेरी बेगम को उसने आइस पे लगाया था। मैं तो आइस देखी भी नहीं थी, मैंने ना पीता हूँ ना मैंने देखी। इसके पास मैंने पहली दफ़ा आइस देखी थी, पहले तो मैंने देखी भी नहीं थी। तुम्हारी बीवी का ये कहना है कि मेरा शौहर मुख्तलिफ आदमियों को लेकर आता था और मेरे पैसे लेता था, ऐसा है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं, मैं 25,000 सैलरी लेता था। तकरीबन सवा दो साल से हम बिल्कुल सही चल रहे थे। ये 1 महीने के अंदर हमारे मामलात ख़राब हुए हैं। आपको कब पता चला कि आपकी बीवी के रशीद के साथ ताल्लुकात हैं? मुझे 2 हफ्ते पहले पता चला। कैसे पता चला था? ये जब आइस के नशे में आई है और एक दिन इसने मुझे बताया कि मुझे तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा बोला वो क्यों, किस लिए, कोई मसला है तो बताओ, उसका हल निकालते हैं। इन्होंने बोला नहीं, मुझे शादी और किसी से करनी है। भाई वो कौन है? इसने मुझे बताया कि ये ऐसे ये आदमी है और इस तरह मेरा निकाहनामा भी उसके पास है और मेरी सेल्फ़ी भी, तस्वीरें भी हैं उसके पास, और मुझे वो ब्लैकमेल करता है, इसलिए मैंने उनसे शादी करनी है। ये 1 हफ़्ते पहले की बात है। और उस वक़्त इसने मुझे बताया कि अब मैं आइस भी पीती है। फिर मैंने अम्मी अब्बू को बुलाया, मैंने बोला चलो डिवोर्स भी देना है तो घर चले जाओ, वहाँ मैं भी आ जाऊँगा और आप भी चले जाओ, तो उधर बैठ के हम डिवोर्स कर लेंगे, या अपना जो भी मसला है घर वालों को बताएंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा कर लेंगे। और मैंने घर वालों को बुलाया, इसको मैंने घर भेज दिया। ठीक है। फिर दूसरे दिन जब मैं इधर से जा रहा हूँ और दूसरे दिन रशीद ने मुझे ये बात की है। उस वक्त ये नहीं थी, मैं ही था उसके पास। ठीक है। जी। फिर उसी टाइम आपने ये काम किया या सोचा कि अब मैंने ये काम करना है? नहीं, उसी वक्त किया। पहले भी मैंने अगर सोचा होता या पहले कर सकता था, या जब ये दोनों थे दोनों को कर सकता था, लेकिन मैं पहले भी बर्दाश्त की और उस वक्त भी मैं करता, लेकिन उसने मुझे ये बात जो है ना, ये मेरी बर्दाश्त के बाहर की है। बस यही बात मेरी। कैसे कत्ल किया आपने? गला दबा के। किस चीज़ से गला दबाया है? ये कपड़े के नाले के साथ, औजारबंद के साथ गला दबाया और मार दिया। फिर क्या किया? फिर मैंने छुरी के साथ उसका कलम किया। जगह कौन सी थी जहाँ पर ये कुछ हुआ? ये गुलबर्ग कॉलोनी थी। कहाँ की? इधर स्टील बाग की। घर था कोई? जी, घर था। उस घर में और कौन कौन था? और कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे। मारपीट तो नहीं करते थे? नहीं, मारपीट हमने 2 दफ़ा मारपीट की है, वो भी इसी 1 हफ़्ते से, ये वकूए के 2-3 दिन पहले, वकूए से 2-3 दिन पहले। और वो फिर भी मैंने घर वालों को बोला कि आके इसे ले जाओ। ठीक है। पुलिस क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। सैयद सकलैन बुखारी थाना सदर कसूर के SHO साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स जानते हैं सकलैन बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब बताइएगा, ये कब का वकूआ है, आपको कैसे इल्म हुआ, क्या मामला है? ये 11 मार्च को 15 की कॉल आई कि घर में से स्मेल आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई डेड बॉडी हो। हम फौरी तौर पे गए, गेट तोड़ा तो अंदर बड़ी नगुफ्ता बे हालत में एक डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके नाज़ुक अज़ा कटे हुए थे और जगह जगह पे खून था। हमारे लिए बड़ा ये स्टनिंग था कि बिल्कुल क्लूलेस, ब्लाइंड और ब्लंट मर्डर था कि कोई उसका गवाह नहीं था, वो अकेला उधर रहता था। कौन आ गया, कौन मार गया, कुछ पता नहीं था। डेड बॉडी कितने दिन पुरानी थी? 2 दिन पुरानी थी। हमने फौरी तौर पे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो यूज़ की, जियो फेंसिंग
PFSC की टीम्स, ये क्राइम सीन की टीम्स, सबको फौरी तौर पे बुला लिया और साइमल्टेनियसली काम स्टार्ट कर दिया तीनों टीम्स ने। इसके साथ साथ जो हमारा रवायती तरीका है इन्फॉर्मर्स का, वो हमने पूरा एक टीम डिस्पैच की जो इर्द गिर्द के लोगों से इसकी इन्फॉर्मेशन जो गैदर करना शुरू कर दी। और इसी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हमें पता चला कि एक लड़की कोई 9-10 दिन से इसके पास स्टे कर रही थी और उस लड़की को कोई नहीं जानता था, ना ही वो उसने किसी के साथ उसका तारुफ करवाया था। जो शक्ल शबाहत बताते थे लड़की की, वो पूछते गए तो एक जनरल स्टोर से पता चल गया कि शक्ल शबाहत की लड़की 1-1.5 माह पहले यहाँ पे रहती थी अपने मियाँ के साथ। फौरी तौर पे हम वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि वो 1.5 माह पहले छोड़ चुके हैं घर यहाँ से। हमने जो उनका किराएदारी का फॉर्म था वो चेक किया, उसका ID कार्ड लिया, उस ID कार्ड पे जितनी सिमें थी हमने फौरी तौर पे उनके नंबर्स लिए और फर्दर जो है ना प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। पता ये चला कि सामने एक बासवा टेक्सटाइल है, वहाँ पे ये आसिफ नामी लड़का काम करता था जो वहाँ से छोड़ के चला गया, मकान भी छोड़ दिया, अब नहीं पता कि वो कहाँ पे रहता है। मीनवाइल इतनी देर में हमारा जो जियो फेंसिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका था। जो उसके नंबर्स थे उनको हमने टैली किया अपने जियो फेंसिंग के नंबर से, तो वहाँ पे इनकी लोकेशंस आ गई। सेकेंडली हमने इसकी CDRs मंगवाई तो उसकी भी लोकेशन वहीं पे आ गई। यहाँ से हमें कोई 80% हमें जो शक था कि यही बंदा है, तो हमने इसके पीछे फौरी तौर पे अपनी टीम रवाना की। ज़िला बहावल नगर, तहसील हरुणाबाद के आगे एक गाँव है मदरसा, वहाँ ये चूँकि शातिर आदमी था, पहले भी रिकॉर्डेड है, ये वहाँ से गायब हुआ। कातिल ऑलरेडी इसके 3 मुकदमात पहले हैं डकैतियों के। तो हमने फिर जल्दी से टीम वहाँ पर रवाना कर दी। 6-7 दिन टीम ने वहाँ पे वर्किंग करके दोनों मियाँ बीवी को अरेस्ट कर लिया। बीवी को नहीं पता था, वो अलग अपने माँ बाप के पास रह रही थी, ये अलग रह रहा था। फिर इन दोनों को जब लेके यहाँ पे आए, थर्ड इंटरोगेशन की तो हर चीज़ सामने आ गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो मुलजिम है उसने किस किस चीज़ का एतराफ़ किया है? उसने तमाम चीज़ें बता दी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कि जो उससे गलती हुई, वो जो इसकी बीवी थी वो इसके पास आ गई थी, मकतूल के पास 8-9 दिन इसके पास रह रही थी और डिवोर्स के लिए कह रही थी, खुला मांग रही थी, इसके साथ शादी करना चाहती थी। ये चीज़ उसे गवारा नहीं थी। उसने प्लानिंग करके अपने माँ बाप और लड़की के माँ बाप दोनों को भेजा मकतूल के पास ताकि लड़की लेके जाएं। वो चारों आए, वो लड़की लेके चले गए 1 हफ़्ते का वादा करके कि हफ्ते के बाद हम उससे तलाक लेके तुमसे शादी करवा देंगे। वो चले गए तो ये आ गया। इसने रात, चूँकि पहले भी आता जाता था उसके पास, मकतूल के पास रात स्टे की। सुबह जब देखा कि वो नींद बेहोशी की हालत में है तो औजारबंद से उसका गला दबाया। जब वो मर गया तो फिर छुरी से उसके जो नाज़ुक अज़ा वो काट दिए। कितने दिनों में आपने मुलजिम को ट्रेस किया और अरेस्ट किया है? मुलजिम तो हमने आलमोस्ट 48 आवर्स में ट्रेस कर लिया था और इन्हें अरेस्ट करने में और कंप्लीट करने में हमें कोई 2 वीक्स लग गए। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।